Hello students, today we are going to discuss the very important chemical property of alcohol, that is dehydration of alcohol with the concentrated H2SO4. This is the temperature influence reaction. Okay, now look at the reaction here. Dehydration of alcohol. I am taking here ethanol. Dehydration takes place in the presence of concentrated H2SO4. You know that it is a very good dehydrating agent. If I am doing the dehydration of alcohol at 413 Kelvin, then it forms ethoxyethane. This is ether and its name is ethoxyethane. If the alcohol undergo dehydration with the concentrated H2SO4 at 433 to 443 Kelvin, then it will undergo dehydration and it form ethene as a major product. स्टूडेंट्स, अगर आप 413 केल्विन पर लो टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, देन इट विल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. आप देखें यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर से वाटर रिलीज होगा. और अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हैं एट 433 टू 443 केल्विन, अप्रॉक्स इट्स अ रेंज, अगर उसके बीच में आप टेम्परेचर लेते हैं तो इट विल अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर रिलीज होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन एट 413 Kelvin. 413 Kelvin. The first step of the mechanism is concentrated H2SO4. It will release H plus ion with the release of HSO4 minus. Sulfuric acid dissociate into H plus and HSO4 minus. The first step of the mechanism, this is the alcohol. Oxygen having 2 lone pair of electron, that's why it acts as Lewis base. उसके पास ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, इसलिए वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और ये अपने ऊपर H प्लस आयन को एसिड के एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल. नाउ इन द सेकेंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, दिस protonated alcohol, in the second step, this is a protonated alcohol. You know that oxygen is electronegative element, है ना. आपको पता होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है. तो ये यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वाटर रिलीज करेगा और उसी टाइम पर जो ये सेकेंड वाला हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं स्टूडेंट, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर. तो जिस टाइम पर ये ऑक्सीजन यहां से ऑक्सीजन वाटर रिलीज करेगा, उसी टाइम ये वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को डोनेट कर देगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये आपके पास बनेगा प्रोटोनेटेड ईथर. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, अनस्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वाटर रिलीज करेगा, तो ये बनेगा कार्बोकैटायन और उसी कार्बोकैटायन को ये वाला सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपने ऑक्सीजन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अटैच करा देगा और ये बन गया आपके पास प्रोटोनेटेड ईथर. दिस इज अगेन द अनस्टेबल वन. तो ये यहां से H प्लस इसमें से रिलीज हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इट विल रिलीज H प्लस आइन और ये H प्लस आइन
फिर HSO4 माइनस के साथ कंबाइन होके बनाएगा H2SO4. Now I am doing the mechanism of dehydration of alcohol to form alkene. Dehydration of alcohol, I am taking here ethanol. Dehydration of ethanol with concentrated H2SO4 at 433 to 443 Kelvin. Actually, the dehydration of alcohol with the sulfuric acid takes place at different temperature. At the 383 Kelvin, it will form ethyl hydrogen sulfate. That ethyl hydrogen sulfate on further heating at the 433 Kelvin undergo the dehydration and then it forms ethene. Okay, now look at the mechanism again. Concentrated H2SO4 dissociate into H plus and HSO4 minus. The first step of the mechanism, this is ethanol. Oxygen having 2 lone pair of electrons, so it acts as electron donor. So it will donate the lone pair of electron to this H plus ion. And this is called protonated alcohol. Students, this is also called oxonium ion. Oxonium ion because oxygen having the positive charge. फर्स्ट स्टेप में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट किया. सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और HSO4 माइनस. HSO4 माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. तो जो हमारे पास एल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं. उसने अपने ऊपर H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इट इज नॉट एट ऑल स्टेबल टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन. तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये कैसा हो गया, काफी अनस्टेबल हो गया. अब ये अपनी तरफ ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वाटर रिलीज करेगा एंड इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म. This carbocation to acquire the stability यहां से H प्लस निकाल देगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर डबल बॉन्ड बना देंगे. दिस इज द कार्बोकेटाइन और उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए साथ वाले ने अपना H प्लस रिलीज कर दिया. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये आपके पास बन गया इथीन. और ये H प्लस जो रिलीज हुआ है ये H प्लस फिर HSO4 माइनस के साथ कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा बिकॉज द सल्फ्यूरिक एसिड हियर एक्ट एज कैटलिस्ट. We have already discussed the mechanism at 433 to 443 Kelvin which involves the formation of carbocation. अब हमें पता है कि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. So due to the stability of this carbocation, the dehydration of 3 degree alcohol give rise to the good alkene as compared to 2 degree alcohol as compared to primary alcohol. क्योंकि हमने जो अभी 433 और 443 रेंज में जो मैकेनिज्म किया है उसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो रही थी और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे अच्छा होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री. नाउ आई एम डूइंग हियर द डिहाइड्रेशन ऑफ 3-methyl butane 2-ol. It involves the formation of carbocation and to acquire the stability it will undergo the rearrangement. क्योंकि उस कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा इसलिए वहां पर जो एक्सपेक्टेड एल्कीन आप बनाएंगे उससे अलग प्रोडक्ट बनेगा. नाउ लुक एट द एग्जांपल हियर. ब्यूटेन 2-ol, दिस इज द 3-methyl. ठीक है, 1 2 3 4 3-methyl butane 2-ol. Same concentrated H2SO4 dissociate into H plus and HSO4 minus. Oxygen having 2 lone pair of electron,
तो ऑक्सीजन के ऊपर एसिड का H प्लस, सेम स्टेप से स्टूडेंट जो हमने अभी किए थे। तो हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन ये यहां से वाटर निकाल देगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। Now the students, the carbon having positive charge attached with the two carbon. That's why it is 2 degree carbocation. 2 degree carbocation क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये जो नेबरिंग कार्बन है इसके पास ऐसे हाइड्रोजन है। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। स्टूडेंट्स H माइनस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने उधर अटैच किया है। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो H के साथ उधर चले गए, वो वाला कार्बोकेटाइन तो स्टेबल हो जाएगा और कार्बन के ऊपर इधर प्लस आ गया। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड यू नो दैट the 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation due to plus side effect। ये ज्यादा स्टेबल है। तो अब इसके अंदर से हम एल्कीन निकालेंगे। यहां से आप नेबरिंग हाइड्रोजन यहां से H प्लस निकाल के इधर डबल बॉन्ड दे देंगे। सो इट विल फॉर्म So it will form 2-methyl but2-ene according to Sidzeff rule। स्टूडेंट्स ये यहां पर हमने हाइड्राइड शिफ्ट की है। हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में स्टेबल हो गया और स्टेबल होने के बाद उसने यहां से H प्लस निकाला और यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू Sidzeff rule that alkene is a major product in which the double bonded carbon has less hydrogen, or you can say that the alkene must be more substituted। ठीक है, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू Sidzeff rule।